Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Usman bin Saif and this course is Performance Management. Course code is HRM755. We are going to start this course. Let me introduce myself. I am basically a finance graduate. I did my MSc in Accounting and Finance from University of Exeter in the UK. Before my MSc, I have done an MBA from Zabist, Islamabad, and I did it in Finance and Human Resource Management, but I did it in bi-majors. Before my MBA, I have a certification in Financial Consultancy as well. I did it from the Institute of Financial Consultants of Canada. I also have various certifications in project management, human development, monitoring and evaluation, research policy development, and meta futures. And my work experience is about 9 years. I have worked in the UK for quite some time, and then when I came back to Pakistan, I have worked for the Trade Policy Wing at the Ministry of Commerce. After the Ministry of Commerce, I joined SDPI as a consultant. It's the Sustainable Development Policy Institute. After SDPI, I have joined the university in the permanent faculty. I had been teaching in the visiting faculties for about 5 years now. So recently I have joined the university in the permanent faculty. So this was about me. Now I'll actually run you through the course contents, what this course is about, why we are studying this course, what will we get out of this course. So this first lecture is more about planning what we will be doing in this course. Let's start with the course objective. The course objective for this course is we'll be examining the importance of an effective performance management system in helping organization define and achieve short-term and long-term goals. हम इस कोर्स में देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टर्म, एक मुश्किल सा वर्ड है कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता क्या है, इसका कंपनी के शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स से क्या ताल्लुक है. देन we'll explain and reinforce the concept that performance management is not a one-time supervisory event, but an ongoing process of planning, facilitating, assessing and improving individual and organizational performance. फिर इस कोर्स में हम ये जानेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोई एक दफ़ा की बात नहीं है. अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें कि जी हमने इस साल की परफॉर्मेंस चेक करनी है कंपनी की, हमने देखना है कि जी इस साल एम्प्लॉयज़ ने कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया. अब परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, अब मैनेजमेंट उसकी कहाँ है. मैनेजमेंट आती है, आपने एक दफ़ा परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर लिया, देख लिया जी ये परफॉर्मेंस है और ये परफॉर्मेंस कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, क्या फैक्टर्स थे और बेहतर कैसे हो सकती है, ये उसकी मैनेजमेंट है. अब ये एक दफ़ा की बात तो नहीं है कि एक दफ़ा हमने परफॉर्मेंस देख ली. इट्स एन ऑन गोइंग, ये हमेशा कंपनी के साथ चलने वाला प्रोसेस है. कंपनी जब तक रहेगी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस रहेगा. तो इस कोर्स में हम देखेंगे कि ये कैसे हम परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे करते हैं, कंपनी को हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाते हैं. In addition, the course emphasizes the importance of measuring the effectiveness of human resource activities that are designed to enhance individual and organizational performance. फिर हम इस कोर्स में उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, उन चीज़ों को हम ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे जो कि हमें
पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगी जो कि हमें इनकरेज करेगी कि हम ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उनको कैसे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं सो दैट कि एक तो एम्प्लॉयज़ की अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़े और कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़े, एम्प्लॉयज़ की अपनी डेवलपमेंट भी हो और कंपनी की डेवलपमेंट भी हो। सो हमारा इस कोर्स को पढ़ने का मेन मकसद ये है कि हम जान सकें कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों की जाती है, क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिर्फ एक दफ़ा का प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग है तो क्यों है, कौन कौन से कंपोनेंट्स एलिमेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो उस जगह पे पहुंचना चाहिए कि जहां पे हम एक कंपनी को एनालाइज करने की सलाहियत रख सकें, हम कंपनी को देख के जान सकें, उसका एनालिसिस कर सकें, कि बता सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कैसे की जा सकती है, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के मिसिंग हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं हैं। अगर मुझे या आपको एक कंपनी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने को दिया जाए तो आप इस काबिल हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद कि आप एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकें और इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। सो ये तो बात थी कोर्स ऑब्जेक्टिव की, कोर्स को पढ़ने के मकसद की। नाउ वी कम टू की लर्निंग आउटकम्स, कि हमारी क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस कोर्स के क्या होंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स हम हासिल करेंगे, क्या चीज़ हम हासिल करेंगे इस कोर्स को ख़त्म कर लेने के बाद, हमारे नॉलेज एरियाज़ में कहाँ कहाँ इजाफा होगा। कोर्स हम जब फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम एक सेशन में या 2 सेशन में इस कोर्स को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज भी करेंगे। अब रिवीजन के बाद आपने इस कोर्स से क्या अखज़ करेंगे, इस कोर्स की आपकी लर्निंग क्या होगी। तो हम सबसे पहले तो टारगेट करेंगे डिज़ाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इज़ कंप्लाइंट विद लॉ एंड सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड स्ट्रैटेजी। तो हमारा जो पहला एक तो हमने इस कोर्स के मकसद पहले देखा कि हम ये पढ़ना क्यों चाहते हैं, फिर हम ये जब कोर्स पढ़ लेंगे तो हमारा आउटकम क्या होगा इस कोर्स से, हम क्या किस चीज़ पे अबूर हासिल कर चुके होंगे। पहली बात जो हमने इसमें देखनी है वो जो हमारा आउटकम होगा वो ये कि जी आप एक डिज़ाइन कर सकें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस या सिस्टम किसी कंपनी के लिए, और ना सिर्फ कि वो प्रोसेस या सिस्टम आप डिज़ाइन करने के काबिल हों बल्कि वो सिस्टम जो है लॉ और कंपनी का मिशन और स्ट्रैटेजी के साथ भी अलाइंड होना चाहिए। Compare and contrast various organizational performance management programs and best practices and define attributes of effective performance management system। और फिर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के काबिल हों। एनालिसिस से मेरी मुराद ये है कि अगर आप 2 या 3 कंपनीज के सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करें तो आप बता सकें कि इस कंपनी के सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, इस कंपनी का सिस्टम इस कंपनी से इसलिए बेहतर है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं दुनिया में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं जिनके परफॉर्मेंस सिस्टम्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो वहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट उन्होंने की हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम उनको भी देखेंगे। Employ job-related performance standards and performance indicators that reflect the employee's range of responsibilities। आप अपनी जिस भी इदारे में जहाँ जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब रिलेटेड जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, या अपनी कंपनी में जहां आप जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू।
Assess how increased employee involvement can contribute to effective performance and coach employees to identify career paths and resources available to support individual development. फिर जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है बेस नहीं करता इंडिविजुअल्स पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस पूरी कंपनी को एज अ होल भी देख रहा होता है, एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअली भी देख रहा होता है। अब जब हम इंडिविजुअली की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को भी का भी ख्याल रख रहे होते हैं, कंपनी भी देख रही होती है कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग्स करानी है और इनको कोई इंसेंटिव्स देने हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। प्लस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ की क्या कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट तो ठीक हो रही, लेकिन वो कंपनी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो उनके कैसे लाजमी किया जाए कि वो कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करें, कंपनी की बेहतरी में, कंपनी की परफॉर्मेंस में भी इजाफा हो, कंपनी की भी डेवलपमेंट हो। लास्टली, identify and communicate appropriate actions with employees, training and development, wage increase, promotion, bonus based on their performance, strengths and weaknesses. और हमारा जो की लर्निंग आउटकम है इस कोर्स का, पांचवा की लर्निंग, और मोस्ट भी हमने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग आउटकम्स थे वही डिस्कस किए। तो जो आखिरी लर्निंग आउटकम है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट जो आउटकम है वो ये है कि कंपनी के लिए का आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप्रोप्रिएट एक्शंस, कंपनी के लिए भी इंडिविजुअल्स के लिए भी। आपके सामने एक अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रख दिया जाए एक कंपनी का और बताया जाए कि जी ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, ये सिस्टम है, उनका अप्रेजल सिस्टम ये है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम ये है, इस तरह से उनकी प्रमोशंस होती हैं, इस तरह उनकी बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, एक आपने टर्म सुनी होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिंपली ये है कि मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, या फॉर दैट मैटर अगर हम यूनिवर्सिटी की, मैं एक यूनिवर्सिटी का परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ। अब मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होती है? मेरी अप्रेजल ऐसे होती है कि फीडबैक ली जाती है स्टूडेंट से कि जो आपके उस्ताद हैं या टीचर हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, प्लस मुझे जज किया जाता है मैंने कोर्स कैसा पढ़ाया, कोर्स का कंटेंट ठीक था नहीं ठीक था, कोर्स के टाइमिंग्स ठीक थे नहीं ठीक थे, मैं डेली यूनिवर्सिटी टाइम पे आता हूँ नहीं आता हूँ, कोलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर है, मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके साथ मेरा रिलेशनशिप इन द सेंस कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब भी मुझे कोई काम देते हैं तो टाइमली एंड अप्रोप्रिएटली मैं काम करके रिटर्न करता हूँ या नहीं करता। मुझे उसके अलावा और बहुत सारी हैं कि मैंने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं नहीं किए हैं तो कैसे किए हैं, लोगों का क्या फीडबैक रहा, फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की जो मेरे अंडर जो मेरे हैं सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे पास टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, मेरे पास रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट में मेरा क्या रोल है, उनको मैं प्रॉपरली सुपरवाइज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, कितने मैं रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहा हूँ, उनका क्या आउटपुट है, मैंने उनको पब्लिश किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें मिला के मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाती हैं कि जी इस साल की मेरी एज एन इंडिविजुअल ये परफॉर्मेंस है, तो इस परफॉर्मेंस की बेस पे मुझे इतना % सैलरी में इंक्रीज़ मिलना चाहिए, या मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, या मुझे साल बोनस मिलना चाहिए। फेयर एनफ। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ही सिस्टम होता है कि जी आप हर एम्प्लॉय को पता होता है कि मैंने इस जो है साल में मैंने ये काम करूँगा, डेली मुझे जो टास्क दिया जाता है वो मैं डेली करके इन टाइम में रिप्लाई करूँगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी बनेगी, तो मुझे सैलरी में बोनस मिलेगा या और इस तरह के कोई पर्क्स मिलेंगे। तो ये तो है परफॉर्मेंस अप्रेजल।
अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम आगे भी इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बात करती है अप्रेजल प्लस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो हम देखेंगे वो एक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, या वो एक्शंस भी आपकी वन ऑफ द लर्निंग होंगे कि क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, या किसी को इंसेंटिव्स क्या क्या एक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है कंपनी की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो की जाएं इम्प्लीमेंट तो उससे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है। सो दिस वाज इट। हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात की, हमने देखा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ये जो कोर्स है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये क्यों पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद हमने लर्निंग आउटकम्स देखे कि इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। नाउ लेट्स गो टू द कोर्स कंटेंट्स और द कोर्स स्ट्रक्चर, व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू गेट थ्रू इन दिस कोर्स। In the section 1, which is strategic and journal considerations, we'll first start with the chapter 1, which is performance management and reward system. Chapter 2 is about performance management process. Chapter 3 is about performance management and strategic planning. हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, सबसे पहले तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का चैप्टर देखेंगे, उस पर हम बात करेंगे, फिर हम रिवॉर्ड सिस्टम को स्टडी करेंगे, रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, फिर प्रोसेस क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ वो कैसे, उसका क्या रिलेशनशिप अलाइंड कैसे होता है। फिर विल नाउ कम टू सेक्शन 2, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सेक्शन 1 में तो हमने बात की कि सिस्टम्स होते क्या हैं, राइट, सिस्टम्स होते क्या हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी कंपनी में। सेक्शन 2 इज अबाउट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इन द चैप्टर 4 विल गो थ्रू डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एंड चूजिंग अ मेजरमेंट अप्रोच। परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है, परफॉर्मेंस तो हम कह रहे हैं, मैंने जैसे कभी एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि यूनिवर्सिटी के एग्जांपल की यूजुअली जो परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करते हैं फैकल्टीज़ की, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, कि वो कैसा पढ़ाते हैं उसको हम मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर कर लेते हैं कि क्लासरूम में या किसी न किसी वो different faculty members come to the class and check कि जी आप कैसा पढ़ाते हैं, वो अपने कमेंट्स देते हैं, स्टूडेंट्स से हम पूछ लेते हैं कि जी कैसा टीचर पढ़ाता है, कोर्स का कंटेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो ऑफ एंड ऑन चेक करते रहते हैं क्लासों में। तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इन सारी चीज़ों पे बेस करता है। फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कोर्सेज कितने पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल है कि बेसिक लेवल कोर्सेज हैं। तो ये सारे मेजरमेंट के तरीके हैं कि जी आप पूछते हैं किसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कि जी फलाना फैकल्टी मेंबर कैसा पढ़ाता है, वो कहते हैं जी बहुत अच्छा पढ़ाता है, एक कहते हैं जी एक्सीलेंट, एक कहते हैं जी आउटस्टैंडिंग है। ये सारे लेवल्स हैं मेजरमेंट के। इन द चैप्टर 5 विच इज़ अबाउट द मेजरिंग रिजल्ट्स एंड बिहेवियर्स, रिजल्ट्स एंड बिहेवियर्स में हम क्या करते हैं कि हम परफॉर्मेंस को मेजर तो हमने कर लिया, अब उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है और उसके ऊपर हमने प्यूनिटिव एक्शंस क्या लेने। चैप्टर 6 इज अबाउट गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर करते हैं, उसके डेटा सेट्स कैसे बनाते हैं। चैप्टर 7 इज अबाउट इम्प्लीमेंटिंग अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमने जब ये सारा काम कर लिया, सिस्टम हमने डिफाइन कर लिया, सिस्टम का हमने प्रोसेस डिफाइन कर लिया, तब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। Then we'll go to section number 3, which is about the employee development. Section 2 में फिर हमने डिस्कस किया कि सिस्टम जब हम सिस्टम बन गया, डेवलप हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। Section 3 is about the employee development, because
employee development in nowadays is very important. Why is it so important? Because it is the employees, it is the human resource which is contributing towards the company. So they are the most critical factors. अगर हम human resource को develop नहीं करेंगे, let's take a very simple example. एक machine operator है, कोई एक फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट मशीनरी लगी हुई है, वन ऑफ द मशीन ऑपरेटर, वो पिछले 10 साल से उसी मशीन पे काम कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि मशीन को चलाने के लिए उसके 2-3 प्रोसेस हैं, वो पहले एक प्रोसेस को करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है. अगर हम उसकी ट्रेनिंग करा दें, उसको हम एक नया सिस्टम सिखा दें कि भाई तुम ये पहला और तीसरा जो प्रोसेस है इसे साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हो, और उसके बाद तुम फिर सेकंड और फोर्थ को इकट्ठा कर सकते हो, सो दैट के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एट अ टाइम इन अ सिंगल टाइम फिनिश हो जाएंगे, रादर देन एक प्रोसेस. अगर सपोज हर प्रोसेस हाफ एन आवर का है तो हाफ एन आवर के बाद इस तरह 2 घंटे लगेंगे उस 4 प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में, और अगर 2 प्रोसेस इकट्ठे शुरू कर दिए जाएं तो 1 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है. इस तरह एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी होगी और कंपनी की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, काम जल्दी हो गया. जल्दी होने का मतलब है कि अगर जहां पे 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने थे उसी टाइम में 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं. सो एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. Section 3 is about employee development. We'll start with chapter 8, performance management and employee development. कि performance management and employee development का आपस में क्या relationship है, कैसे एक दूसरे को complement करते हैं. Then in the chapter 9 we'll talk about performance management skills. How can we inculcate or develop performance management skills in the human resource, in the supervisors, in the employees? How can we develop the culture of performance management skills? Then finally in the section 4 we'll talk about reward system, legal issues and team performance management. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि एक सिंगल इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी है, फिर इंडिविजुअल्स मिलके कंपनी का एक बैच बना लेते हैं कि जी ये बैच वाले लोग ये कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, फिर एज अ होल पूरी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स मिलके, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी टीम्स हैं. अब टीम मैनेजमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. टीम मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली होगी तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो सकेगी, सिस्टम चल सकेगा. प्लस लीगल इश्यूज क्या हैं, हम डिस्कस करेंगे कि लीगल इश्यूज क्या हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के, सिस्टम को चलाने के लिए, और अगर लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, और उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है. लिटिगेशन nowadays is very expensive. लिटिगेशन क्या होती है? लिटिगेशन होती है, प्रोसेस है कि सपोज मैं कंपनी में जॉब करता हूँ और उन्होंने कोई अनड्यू या मेरी गलती नहीं थी, किसी की गलती की वजह से मुझे कोई सज़ा दी या उन्होंने मुझे निकाल दिया कंपनी से. I'll go to the court. मैं कोर्ट में जाके केस फाइल कर दूंगा. आई विल गो इनटू लिटिगेशन. मैं कोर्ट प्रोसेस में, लीगल प्रोसेस में मैं चला जाऊंगा. मैं जाके कोर्ट को बताऊंगा कि जी इन्होंने मेरे से ज्यादती की, इन्होंने मुझे निकाल दिया. कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट बुलाएगी कंपनी को भी, मुझे भी बुलाएगी. कोर्ट दोनों को सुनेगी और फिर फैसला देगी कि जी ठीक है इन्होंने ज्यादती की तो दे शुड पे. नाउ हो सकता है कि वो ज्यादती इतनी बड़ी ना हो. सपोज कंपनी ने मुझे इस साल बोनस देना था, बोनस मुझे 50,000. द कंपनी हैड टू पे 50,000 टू मी एंड दे डिड नॉट, एंड आई वेंट टू द कोर्ट. But because of the litigation charges and the case had gone to the court will decide how much the company will reimburse me, how much company is going to pay to me.
एंड इट डिपेंड्स, हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जी आपने 50,000 देना था इनको बोनस में, अब 10 लाख रुपए आप इनको देंगे एज कंपनसेशन, बिकॉज द पर्सन हैज गॉन टू द कोर्ट, the person has come to the court and the person has suffered. It was a tragedy for him or her. The person has suffered mentally and physically because of this frustration or this tragedy that you have fired the person from the company or you have not given the bonus to him or her. So litigation is very expensive these days. The company has to apply, put in place all the legal formalities, all the laws, and they have to comply all the laws and regulations so that they avoid those litigation costs. Litigation costs is a loss for the company. So in the chapter 10 we'll talk about reward system and legal issues. अब रिवॉर्ड सिस्टम क्या है जी? रिवॉर्ड सिस्टम है कंपनी ने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देने, रिवॉर्ड्स देने, उसमें क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं. एंड देन मैनेजिंग टीम परफॉर्मेंस इन द चैप्टर 11. सो दिस वाज अबाउट द कोर्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इन दिस कोर्स. One thing that I want to discuss over here is, in fact announce, is this course belongs to human resource management and this course is mostly based on the theory, and sometimes the theory becomes tough and the students tends to lose their concentration and their active participation. So my way of teaching is, rather than making this course dry, I'll try to put as many real scenarios, as many case studies as I can in this course, so that when you'll be going through this lecture, you will be enjoying the real scenarios. You will be actually looking at what has companies done in the past, how do they do the performance management, the real cases, and then you will be learning out of them. So you will be more accustomed with the norms, with the terms, with what performance management is, and you can refer back to them in your own companies, and you can put those systems, you can replicate them to whenever you're developing a performance management system for any company. So I'll try to focus more on the case studies. Let's start the course with what is performance management, and this is a very small case study. Let's go through this case study and see what is performance management. Actually, I'm trying to define performance management. This case study will tell you what is not performance management. What companies usually think that they are doing performance management, and it is actually not the performance management. So this case study will tell you what is not performance management. Sally is a sales manager at a large pharmaceutical company. The fiscal year will end in 1 week. She is overwhelmed with end of the year tasks, including reviewing the budget she is likely to be allocated for the following year, responding to customers, phone calls, and supervising a group of 10 salespeople. It is very hectic time. Probably the most hectic time of the year. She receives a phone call from the Human Resources Department. Sally, we have not received your performance reviews for your 10 employees. अब क्या है?
सैली इस वक्त बहुत बिजी है, उसने बजट भी बनाना है, और उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जी तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं 10 तुम्हारे पास सेल्स पर्सनस हैं, उसका तुमने परफॉर्मेंस रिव्यू हमें नहीं भेजा, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है एचआर ने, तो उन्होंने कहा आप रिव्यू भेजेंगे तो हम अब उसका उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे. They are due by the end of the fiscal year. Sally thinks, oh, those performance reviews, what a waste of time. From Sally's point of view, there is no value in filling out those seemingly meaningless forms. She does not see her subordinates in action because they are in the field visiting customers most of the time. All that she knows about their performance is based on sales figures, which depends more on the products offered and geography territory covered than the individual effort and motivation of each salesperson. अब मसला क्या है कि उसके बाद 10 सेल्स पर्सन है जो कि ऑफिस तो कम ही आते हैं, ऑफिस नहीं आते, वो सारे के सारे फील्ड में काम कर रहे हैं. अब फील्ड की परफॉर्मेंस तो उन्हें सिर्फ सेल से ही पता चल सकती है सैली को कि भाई अगर वो उसकी सेल्स ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. लेकिन परफॉर्मेंस सेल्स की तो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि किस एरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं. अगर वो किसी पॉश एरिया में किसी एक्सपेंसिव जगह पे कर रहे हैं जहाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा, उनकी बाइंग पावर भी ज़्यादा है, वो ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे उनकी सेल भी ज़्यादा होगी. सो जो सेल्स है वो ट्रूली डिपेंड नहीं करती सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस. And nothing happens in terms of rewards regardless of her ratings. These are lean times in her organization, and salary adjustments are based on seniority rather than on merit. She has less than 3 days to turn in her forms. What will she do? She decides to follow the path of least resistance to please her employers and give everyone the maximum possible rating. In this way, Sally believes the employees will be happy with their ratings and she will not have to deal with the complaints of follow-up meetings. Sally fills out the form in less than 20 minutes and gets back to her real job. Is this the performance management? What do you think? हमने भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिस्कस किया. अब हमने केस देखा कि सैली एक कंपनी में मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उसके बाद 10 सेल्स पर्सन हैं. उनकी उसने परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसकी देखनी है. अब वो लोगों से तो मुलाकात होती नहीं, अब पता नहीं उसको एग्जैक्टली कि ये कौन अच्छा परफॉर्म करता है, कौन कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि वो टेरिटरी की वजह से भी परफॉर्मेंस सेल्स कम ज़्यादा हो जाती हैं. अब और सैली के पास टाइम भी नहीं है और उसे ये भी लगता है कि ये सब बकवास सिस्टम है. हमारी कंपनी में सिर्फ सीनियरिटी बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड्स बोनस शोनस दिया जाता है या फिर जो है सीनियरिटी बेस पे प्रमोशंस होती हैं. तो अगर मैं इनको एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी भी लिख दूँ या बुरी भी लिख दूँ तो उससे कंपनी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा, एम्प्लॉयज़ को भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा. अगर मैं किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी लिखूँ तो उसकी बेस पे उसे प्रमोशन या कुछ शायद मुश्किल ही मिले. लेकिन अगर मैंने उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना लिखी, ये ज़रूर हो सकता है कि मुझे फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले बुलाएंगे, पूछेंगे इसकी परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं है, एम्प्लॉय मुझे कंप्लेंट करेगा कि मेरी परफॉर्मेंस आपने ऐसी क्यों लिखी, फिर मैं उसे एक्सप्लेनेशन करूँगी और उसने कहा इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. सब बकवास सिस्टम है. सो उसने कहा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, बस मैं परफॉर्मेंस के फॉर्म्स फिल कर देती हूँ, रेटिंग अच्छी लिख देती हूँ कि जी ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, ये भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा है. सो दैट वो सारी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जाने कि जी उनको रिवॉर्ड देना है या नहीं देना, या बोनस देना है या नहीं देना. इज दिस द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? माई आंसर इज नो. देन वाई नॉट? उसने भी तो परफॉर्मेंस ही मैनेज की. सैली ने क्या किया? परफॉर्मेंस एवैल्यूएट की, परफॉर्मेंस मैनेज की. फिर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों नहीं है? लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सी व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. और इसी केस स्टडी को हम एंड पे फिर दोबारा रिलेट करेंगे कि इसमें क्या फ्लॉ है. There is something very wrong with this picture, which unfortunately happens all too frequently in many organizations. Although Sally's human resource department calls this process performance management, it is not. Then what is performance management?
let's start with the definition. Performance management is a continuous process of identifying, measuring, developing the performance of individuals and teams, and aligning performance with the strategic goals of the organization. सैली के केस में क्या हुआ? सैली के केस में तो कुछ भी नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही, मेजर फेक हो रही है, डेवलपमेंट टीम की कोई नहीं हो रही, एंड देन कंपनी की जो ये है परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, ये स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ क्या ये अलाइंड है सैली के केस में या नहीं है? सो वाई the human resource department of Sally's corporation or the company thinks that they are doing performance management when they are not? In fact, they are not. Let's consider each of the definitions, two main components. पहला हमने पढ़ा continuous process. पहला component था continuous process. Performance management is ongoing. It involves a never-ending process of setting goals, objectives, observing performance, and giving and receiving ongoing coaching and feedback. Ongoing process क्या होता है? Ongoing process होता है जो never ending हो, जो ख़त्म ना होने वाला, जब तक कंपनी जिंदा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती रहेगी. ऐसा नहीं है कि जी हर साल हमने आखिरी 2 महीने में सोचा यार इस साल की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं की, यार क्या करें फटाफट, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को साल गुजर रहा है, एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि हमें बोनस नहीं दिया और ये नहीं किया. बोनस किस बात पे देना है? हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो देंगे. सी यूजुअली दिस हैपेंस इन द कंपनीज. और लेट्स डू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फॉर्म फिल करा लिया, मैनेजर से पूछ लिया जी फलाना 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 एम्प्लॉय कैसा काम करता है, ठीक है जी ऐसा ऐसा, ठीक है, दैट्स इट, खत्म. नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो पूरा साल होता रहता है. उसमें क्या होता रहता है? कंपनी अपने नए से नए गोल बनाती रहती है और वो गोल्स अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को बताती रहती है कि जी हम अब ये करना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं. नया गोल बनाया कि जी सपोज इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जी पहले डिटोल सोप है, डिटोल्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है. पहले उन्होंने सपोज, दिस इज़ नॉट अ रियल केस, जस्ट अ फिक्टिशियस एग्जांपल, कि जी अगर डिटोल सोप वाले सोचते ही कि जी हमने डिटोल सोप बना दिया है और ये बड़ा अच्छा सोप है, हम इसको मार्केट में बेचेंगे. अब कंपनी का पहले गोल ये था कि हमने साबुन बेचने. अब उन्होंने और प्रोडक्ट्स भी जितने थे हाइजीन के, क्लीनलीनेस के, वो भी डेवलप कर लिया. अब कंपनी का गोल है कि हम हाइजीन मार्केट लीडर बनना है हमने. इट्स अ न्यू गोल, नई स्ट्रैटेजी उसके लिए बनेगी कि जी ये प्रोडक्ट्स ये भी बिकने चाहिए डिटोल सोप के साथ, ये भी बिकेंगे तो हम मार्केट लीडर हाइजीन प्रोडक्ट्स में बनेंगे, राइट. तीसरी चीज़ क्या है जी? ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस. मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास नीचे हैं जूनियर मैनेजर्स हैं, जूनियर मैनेजर्स के साथ नीचे टीम लीड्स हैं और आगे टीमें हैं. फिर मैंने अपने जूनियर मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना है. कौन सा मेरे पास 4 मैनेजर है, कौन सा मैनेजर अच्छा काम करता है, कौन सा टाइमली है, कौन सा नहीं है, किसको जल्दी समझ आती, किसको नहीं आती. फिर ना सिर्फ ये कि मैंने उसे ऑब्जर्व करना है, मैंने उसे कोच भी करना है, सुपरवाइज भी करना है. वो कैसे करना है? मैंने उसको बताना है कि भाई तुम ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इस पे ये वाली अप्रोच तुम अप्लाई करोगे तो इसका ये रिज़ल्ट निकलेगा. मैं साथ साथ उसकी ग्रूमिंग भी कर रहा हूँ, उसको समझा भी रहा हूँ उसे. फिर और मैं डेवलपमेंट में उसे करा सकता हूँ कि जी फ़लानी बिज़नेस स्कूल इज़ अ वेरी गुड प्लेस, तुम वहाँ से ये कोर्स कर लो, बल्कि कंपनी पैसे देती है, तुम कोर्स कर लो वहाँ से. या मैं इनके लिए ट्रेनिंग अरेंज कर लेता हूँ चारों मैनेजर्स के लिए कि जी आपने ये, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इसको ऐसे लॉन्च करना है, इसके लिए ये स्ट्रैटेजी होगी, तो ये ट्रेनिंग है आपकी. कंटिन्यूसली मेरा इंटरेक्शन अपने मैनेजर्स के साथ. फिर मेरे मैनेजर्स जो नीचे टीम लीड्स के साथ, टीम लीड्स अपनी टीमों के साथ, सारी टीम को देख रहे हैं कि जी कौन सा बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको कोच, उसको अगर नहीं कर रहा, कौन सा काम कर रहा है उसको कोचिंग करें, उसको समझाएं, ट्रेनिंग दें कि जी तुम इसको ऐसे ठीक कर लो, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए.
So this is a continuous process. It goes on all the year. It's not a one-time job. Then the second most important component of performance management is alignment with strategic goals. Performance management requires that managers ensure that employees' activities and outputs are congruent with the organization goals, and consequently help the organization gain a competitive advantage. Very true. Why is it so? Alignment with strategic goals. Why is it the most important main component of performance management? मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अपनी कंपनी की क्यों करना चाहता हूँ? दो मकसद है मेरे. एक तो मेरा मकसद ये है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जाननी है मैंने. दूसरा मकसद ये कंपनी की परफॉर्मेंस जाननी है मैंने. हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए थे. अब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस तो मैं ऐसे जान सकता हूँ कि देख सकता हूँ कौन सा ऑब्जर्व कर सकता हूँ लोगों को, सेल्स टारगेट दे सकता हूँ उन्हें, सेल्स देख सकता हूँ कौन सा अच्छा सेल करा कौन सा अच्छा नहीं सेल करा. कंपनी कैसे कर सकता हूँ, ओवरऑल कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया. इज इट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड देन अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स. अब एक इंडिविजुअल है, मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है. सपोज अगर मेरी कंपनी का हायरार्की ये है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कंपनी का, फिर मेरे बाद एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाद 2 डायरेक्टर्स हैं, फिर उन डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स और फिर टीम्स हैं. ये हायरार्की है. अब जो एक टीम मेंबर है उसको क्या पता है कि मेरी कंपनी का गोल क्या है? मैं डिटोल सोप बेचता हूँ. सपोज अगर डिटोल सोप का नाम ना लें, हम कहें कि जी एंटीबैक्टीरियल सोप मैं बेचता हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि पहले तो एंटीबैक्टीरियल सोप से मेरी मुराद ये है कि मैं एक सोप बनाता हूँ जो कि मैं कहता हूँ कि जी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, जर्म्स को किल करता है. अब मेरा पहला कंपनी का गोल ये था कि जी पर्सनल हाइजीन जो है उसको इम्प्रूव करता है, जर्म्स को मारता है मेरा जो एंटीबैक्टीरियल सोप है. अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंपनी ग्रो हुई. अब मैंने और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की. मैंने ना सिर्फ पर्सनल हाइजीन की, मैंने और क्लीनलीनेस, बाथरूम क्लीनिंग के मैंने वो लिक्विड्स और डिश वॉशर्स और इस तरह की चीज़ें मैंने लॉन्च की. और मेरा कंपनी का जो गोल है वो नया गोल अब ये है कि आई वांट टू बी मैं अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज भी बढ़ाना चाहता हूँ, मार्केट लीडर बनना चाहता हूँ. किसमें? क्लीनलीनेस में. हाइजीन लीडर. हाइजीन लीडर का मतलब है कि हर तरह की हाइजीन का मेरा प्रोडक्ट है और वो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है. पहले तो मैं कह रहा था कि जी मेरा सिर्फ जो साबुन है, सोप है, वो मार्केट में एंटीबैक्टीरियल और भी सोप्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेरा सोप बिकता है. अब मैं कहता हूँ कि जी मैं लीडर बन गया हूँ, हाइजीन लीडर बन गया हूँ, मेरे बाकी के भी जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा बिकते हैं. अब मैं ये बेचना चाहता हूँ, मेरा गोल ये है. अब क्या ये मेरा गोल मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता है? उनके गोल्स के साथ ये अलाइंड है? उनके गोल्स के साथ अलाइंड होने का मतलब ये है कि अब एक टीम, मैंने बताया कि जी असिस्टेंट मैनेजर्स उनके पास पर टीम लीडर्स हैं और टीम लीडर्स की नीचे टीमें. अब वो एक टीम मेंबर है, उसको टास्क दिया है सेल्स का कि जी आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने. अब वो सिर्फ फोकस करता है एंटीबैक्टीरियल सोप बेचने पे, वो बाकी प्रोडक्ट्स पे फोकस ही नहीं करता, क्योंकि उसका गोल ये है कि सिर्फ एंटीबैक्टीरियल सोप सबसे ज़्यादा बिकना चाहिए. कंपनी का गोल ये है कि उसके सारे प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए सो दैट वो हाइजीन लीडर बन जाए. सो देयर इज़ अ फ्लॉ, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय. अब
उसका भी अगर गोल ये अलाइन हो जाए कि जी कंपनी को मैंने, कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स को भी मैंने फोकस करना है, कंपनी को भी मैंने हाइजीन लीडर बनाना है, बाकी प्रोडक्ट्स भी मैंने सेल बढ़ानी है, तो क्या होगा, मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस एज अ होल बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा, कंपैटिटिव एडवांटेज बढ़ेगी मेरी कंपनी की. So there are two main vital components of performance management. One is it's a continuous process. Number two, it's alignment with the strategic goals. Performance management therefore creates a direct link between the employee performance and organization goals and makes the employee contribution to the organization explicitly. Note that many organizations have what is labeled as performance management system. However, we must distinguish between performance management and performance appraisal. अब जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि जी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं. इट्स अ न्यू वर्ड, इट्स अ न्यू मंत्रा in a meeting जहाँ पे सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनीज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स की एक पार्टी है, वहाँ पे हर कंपनी का सीईओ कह रहा है, बेसिकली ही इज़ बोस्टिंग अबाउट हिज कंपनी, अपनी कंपनी की तारीफ करेगा जी हम भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमने इन प्लेस कर ली है, हम भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं और वी हैव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. लेकिन मोस्टली कंपनीज में व्हाट हैपन्स इज कि दे आर नॉट डूइंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. It's the performance appraisal system. So there is a fine difference between performance appraisal and performance management. We'll now discuss what is. We've actually discussed it before. हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं. A system that involves employees evaluation once a year without ongoing effort to provide feedback management system. Instead, this is only a performance appraisal system. Performance appraisal is a system description of employees' strengths and weaknesses. पहले भी हमने डिस्कस किया. अब मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं बेसिकली कंपनी का मैनेजर हूँ और मैंने जैसे सैली के केस में हमने अभी तो डिस्कस किया, सैली ने क्या किया कि उसके 10 आगे सबॉर्डिनेट्स हैं, उसने उनके बारे में एक फॉर्म फिल करके दिया कि जी इस, अगर सपोज हमने उसमें डिस्कस किया था कि जी वो क्योंकि 10 लोगों को प्रॉपरली जानती नहीं, क्योंकि सेल्स में होते हैं और ये वो, इन केस अगर वो जानती होती तो फॉर्म में ये लिखती कि जी एम्प्लॉय जो टीम मेंबर नंबर 1 है, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ ये वीकनेस है, इसने इस साल में इतनी सेल की, इस साल में इतने दिन टाइम पे आया और इसने इस साल में ये ब्लंडर किया, इसने ये किया ये किया. दिस इज़ व्हाट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. उसने अप्रेजल बना के ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस को, डिपार्टमेंट को भेज दिया. अब ह्यूमन रिसोर्स वालों ने उससे एनालाइज किया और देखा कि अच्छा इसने ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसने ये पूरी की, ये नहीं की, इसको बोनस देना चाहिए, इसको ये देना चाहिए, इसने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया. सो दिस इज़ व्हाट अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इज़. इसमें एम्प्लॉय की फीडबैक नहीं ली जाती, ना एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आपने इस साल में आपकी ये परफॉर्मेंस रही, इन एरियाज़ में आप वीक थे और इन एरियाज़ में आप ऐसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो, ये एरियाज़ आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपके लिए मैं ट्रेनिंग अरेंज कर देता हूँ, आप ऐसा करें कि ये वाली जो फ्रेमवर्क है इसको अच्छी तरह स्टडी करें और इसको अपने काम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आप इम्प्रूवमेंट हो सकती है. मैं उसे कोचिंग प्रोवाइड करूंगा, उसको बताऊंगा कि जी ये आपकी फीडबैक है, उससे भी फीडबैक लूंगा कंपनी के बारे में. दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. पहला वाला क्या था? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. Thus, performance appraisal is an important component of performance management, but it is just a part of bigger whole, because performance management is much more than just performance measurement. So performance appraisal एक important component तो है performance management system का, लेकिन performance management एक
परफॉर्मेंस मेजरमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत ऊपर की अम्ब्रेला है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. Now going on to another case study. It is about performance management again. As an illustration, consider how Merrill Lynch has transitioned from a performance appraisal system to a performance management system. Merrill Lynch एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है अमेरिका में. इनिशियली वहाँ पे भी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम था इन प्लेस. उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे डेवलप करके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया. दिस केस स्टडी इज अबाउट दैट. Merrill Lynch is one of the world leading financial management and advisory companies with offices in 37 countries and private client assets of approximately $1.6 trillion. As an investment bank, it is a leading global underwriter of debt and equity securities and strategic advisor to corporations, governments, institutions, and individuals worldwide. Look at the volume, look at the size of the company. It's a huge corporation. Recently, Merrill Lynch started the transition from giving employees one performance appraisal per year to focusing on one of the important principles of performance management. The conversation between managers and employees in which feedback is exchanged and coaching is given if needed. In January, employees and managers set employees' objective. Mid-year reviews assesses what progress has been made towards the goal and how personal development plans are faring. Finally, the end of the year review incorporates feedback from several sources, evaluation progress towards objectives, and identify areas that need improvement. Managers also get extensive training on how to set objectives and conduct reviews. In addition, there is a website that managers can access with information on all aspects of performance management system. In sharp contrast to their old performance appraisal system, Merrill Lynch's goal for its newly implemented performance management system is worded as follows. This is what is expected of you. This is how we are going to help you in your development, and this is how you will be judged relative to compensation. Merrill Lynch ने क्या किया? पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम था. परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम था, वो हर साल एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक कर लेते थे, उस हिसाब से उन्हें कंपनसेशन देते थे. फिर उन्होंने उसे जब ट्रांजिशन फेज में वो गए, उसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया into the performance management system. What did they do? There were 3 stages. In the first stage, managers ने और जो कंपनी के हेड्स थे, उन्होंने बैठ के गोल्स डेवलप किए कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, और उनको बताया कि जी साल में आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाएंगी, आपने काम ऐसे करना है. फिर सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेकंड स्टेज में बताया कि जी हम आपके काम को और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को ऐसे एनहेंस करेंगे, आपको हम हेल्प यहाँ ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं. थर्ड स्टेज में उन्होंने फिर बताया कि जी अब क्योंकि आपको आपका काम भी पता है, आपको ये भी पता है कि आप कहाँ से हेल्प हासिल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कहाँ करेंगे, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे. नाउ ये क्राइटेरिया, इसके ऊपर हमने आपको एवेल्युएट करना और जज करना. द लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर डेवलपमेंट, एंड दिस इज हाउ यू विल बी जज्ड रिलेटिव टू कंपेंसेशन. और इसकी बेस पे, और इसमें उन्होंने फीडबैक को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाया, हर स्टेज पे फीडबैक. और फिर उन्होंने कहा कि जी इसकी बेस पे हम आपको बोनस भी देंगे, रिवॉर्ड सिस्टम भी हमारा सारा इस पे बेस करोगे कंपेंसेशन का. नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल. कंसिडर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैनेजर्स एट जर्मनी बेस्ड Siemens, which provides mobile phones, computer networks, wireless technologies, and
and employs 475,000 people in 190 countries. At Siemens, the performance management system is based on 3 pillars: setting clear and measurable goals, implementing concrete actions, and imposing rigorous consequences. The performance management at Siemens has helped change people's mindset, and the organization is now truly performance oriented. Every manager understands that performance is a critical aspect of working at Siemens. And this guiding philosophy is communicated in many ways throughout the organization. इन्होंने भी 3 stages में इन्होंने भी 3 components major बनाए. पहला component क्या है? Setting clear and measurable goals. पहले तो उन्होंने गोल डिफाइन किए, कंपनी का क्या गोल है, एम्प्लॉयज़ का क्या गोल होंगे, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और उन्होंने मेजरेबल की जो उन चीज़ों पे बात की जो कि आप एम्प्लॉय को एक काम दिया और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उस पर कैसे, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं. देन इम्प्लीमेंटिंग कंक्रीट एक्शंस, फिर उन्होंने उसको जो गोल्स हैं उनको उनके इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक्शंस कौन कौन से लिए, एक्शंस डिफाइन कर दिए सारे कि ये एक्शंस हो सकते हैं. फिर इम्पोजिंग रिगोरस कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उन एक्शंस के अगेंस्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो उन्होंने 3 पिलर्स पे या 3 मेन कंपोनेंट्स पे बेस करके सीमेंस ने अपना सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया. Performance management systems that do not make explicit the employee's contribution to the organization goals are not true performance management system. Explicit क्या होता है? जो directly, अब जैसे performance management systems that do not make explicit the employee's contribution to the organization goals. अब हर अगर employee की directly या straightforwardly contribution towards the company goal नहीं होगी अगर है, तो इसका मतलब it's not a true performance management system. Your performance management system is not implemented in true sense. Making an explicit link between an employee's performance objectives and the organizational goal also serves the purpose of establishing a shared understanding about what is to be achieved and how it is to be achieved. कि क्या कंपनी का जब भी गोल या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, गोल क्या होता है, गोल क्या होता है, कंपनी कहाँ क्या चाहती क्या है और कैसे चाहती है, उसको करना कैसे. This is painfully clear in Sally's case described earlier. From her point of view, the performance review forms did not provide any useful information regarding the contribution of each of her subordinates to the organization. सैली के केस में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर्म्स जो थे वो कोई इतनी ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते थे, क्योंकि सैली के पास खुद इतनी ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं थी और अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, तो उसकी वजह से उनका सबऑर्डिनेट्स की कंट्रीब्यूशन नहीं पता चलती थी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो. सैलीज केस इज़ अनफॉर्चुनेटली मोर कॉमन दैट वी वुड लाइक, और यही जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मोस्टली कंपनीज में ऐसा ही हो रहा है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है जिसको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और अप्रेजल सिस्टम भी बस ऐसे ही है कि उसमें नॉट इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट, बस ऐसे ही बस फॉर्म्स फिल करो, जान छुड़ाओ, टाइम नहीं है मैनेजर्स के पास. A survey conducted by consulting firm Watson Wyatt showed that only 3 in 10 employees believe their company performance review system actually helped them improve their performance. Watson Wyatt एक कंपनी है, रिसर्च फॉर्म है, जिन्होंने एक सर्वे कराया अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, और उन्होंने कंपनीज का सर्वे कराया और उन्होंने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि जी आप बताएं कि आपकी डेवलपमेंट में कंपनीज के जो परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम है उसकी वजह से कोई इम्प्रूवमेंट आई आपकी परफॉर्मेंस में या आपकी डेवलपमेंट में. तो ओनली 3 आउट ऑफ एवरी 10 में से 3 लोगों ने कहा कि जी हाँ जी कुछ इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन बाकी के 7 ने कहा नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस और द कंट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम.
There are many advantages associated with the implementation of a performance management system. First one is motivation to perform is increased. Performance agar it's a proper performance management system which is properly implemented in true letter and spirit, then motivation to perform is increased. Receiving feedback about one's performance increases the motivation for future performance. Knowledge about how one is doing and recognition about one's past success provides the fuel for future accomplishments. Common sense की बात है, very true. I am an employee of a university. My head of department comes to me and tells me कि भाई आपकी इस साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा अप्रेजल दिया, and other than that colleagues की feedback on this had been very good, but आपने इस साल रिसर्च में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं की, so you should focus more on the research side as well. I'll be very obliged. मैं बहुत खुश हूँगा कि जी मेरी फीडबैक बहुत अच्छी है और I'll take it very positively कि मुझे बताया गया है कि जी आप रिसर्च को इम्प्रूव करें, और साथ मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे बताते हैं कि जी आप रिसर्च को इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ स्पेयर टाइम निकाल लें यूनिवर्सिटी में, आपको कुछ है हेल्प चाहिए हो मेरे ऑफिस आ जाए, हम दोनों बैठ के डिस्कस कर लेंगे, और there's another faculty member, doctor so and so, you go to him, he is very good, he'll coach you. I'll talk to him, the head of department says I'll talk to him, मैंने कह दूंगा आप उनके पास जाएं, spend time with him, तो आपका ये side भी improve हो जाएगी. So it is giving a motivation to perform well in future. अब बाकी चीज़ें तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी चीज़ों में ये जो एक एस्पेक्ट था रिसर्च का वो नहीं ठीक था, तो अब मैं अगले साल में पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा ये भी ठीक हो जाए, रादर देन कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, किसी ने मुझे कोई बताया ही नहीं फीडबैक क्या. मैं इंटरेस्टेड भी हूँ फीडबैक जानने में कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ. अब जब मुझे फीडबैक ही नहीं पता चल रही, मैं भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क, जो जैसा चल रहा है ठीक है. अगर कोई मुझे नहीं छेड़ रहा, फीडबैक ना मिलने का वक्त मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत बुरी नहीं है. अगर तो बुरी होती तो मुझे कहते कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तुम्हें लास्ट चांस दे रहे हैं, कंपनी से निकाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे. अब अगर कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा तो मैं तो ठीक ही जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इंप्रूव करने कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. आई एम नॉट मोटिवेटेड, बट द अदर वे राउंड आई विल बी वेरी मोटिवेटेड इफ the HOD gives me the feedback that he'll receive about me and he'll politely tell me कि जी this is the area which you need to improve on. I'll be very happy to do that. So this is the one of the important advantage of the performance management system. Self-esteem is increased. Receiving feedback about one's performance fulfills the basic human needs to be recognized and valued at work. This in turn is likely to increase employees' self-esteem. The head of department has come to me and told me that I have performed very well this year. I'll be very obliged, I'll be very happy. मेरी ego, मेरी self-esteem बहुत बढ़ जाएगी. I'll be in the air कि मैं ये सोचूंगा कि जी मैंने इस साल बहुत अच्छा, मैंने मेहनत भी की थी यार, बहुत रगड़ा भी लगा था मुझे, काम भी बहुत किया था, लेट सिटिंग्स भी, और बहुत मैंने लोगों की काउंसलिंग भी की, और लेकिन मुझे रिवॉर्ड भी मिला. सो दैट इज़ वाई मुझे अगले साल के लिए भी मैं ये सोचूंगा कि अगले साल भी मेहनत से काम करना है और ये करना है वो करना है. Managers gain insight about subordinates. Direct supervisors and other managers in charge of appraisal gain new insights into the persons being appraised. अब होता क्या है कि जैसे मैं अभी हम क्योंकि एग्जाम्पल एक डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में हायरार्की है कि
फैकल्टी मेंबर्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स के फिर ऊपर क्लस्टर हेड्स हैं, क्लस्टर हेड्स के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर डायरेक्टर कैंपस है। अब जब मेरी अप्रेजल डायरेक्टर कैंपस के पास जाएगी तो अगर मेरी बहुत अच्छी अप्रेजल है उनके पास जाती है तो उनको भी पता चलेगा कि जी ये वाला जो फैकल्टी मेंबर है उस्मान बिन सैफ, he has performed very well this year. The head of department and the cluster head is very happy with him, and he'll gain new information about me. The director campus को पता चलेगा कि जो उस हैं faculty member हैं उस्मान बिन सैफ, his way of teaching is different than the rest of the faculty members. Rather than teaching in the class traditionally, he prefers the way of a training session. He makes those sessions more participatory, more interactive. Students become happy, they gain more knowledge in the class. So this is one aspect that the director campus will know about me. And sometime in one of the party or one of the lunch at the university, in very informally the director campus will tell me कि I've got to know that your teaching methodology is different and I'm very impressed, and I'll be very happy with that, the director campus is actually telling something good about me. So this is how managers gain insight about their subordinates. They find new things about their subordinates. The definition of job and criteria are clarified. The job of person being appraised may be clarified and defined more clearly. In other words, employees gain a better understanding of the behavior and results required of their specific position. In common words, we call it the job description. Through the performance management system or the performance appraisal system, what happens is that your job description is matched with your current responsibility, with your evaluation of your current responsibilities. और क्या होता है कि आप पता चलता है कि जी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये काम इस एम्प्लॉय को दिए गए थे कि ये काम आप करेंगे और ये काम ये कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा. So performance management system के through definition of the job and criteria are more clarified, they become more clear because they are evaluated. The employee responsibility or employee performance is evaluated against a job description. So in turn, the employee has to know his or her job description. He has to know what are the responsibilities that are being given to him or her, so that I or he, she may fulfill them, so that their or mine appraisal improves. Self-insight and development are enhanced. The participants in this system are likely to develop a better understanding of themselves and of the kind of development activities that are valued to them as they progress through the organization. Participants in this system also gain a better understanding of the particular strengths and weaknesses that can help them better define future career paths. This is very important, self-insight and development. अभी हमने एक डिस्कस की थी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी की, जिसमें मैंने कहा कि मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि आपकी रिसर्च साइड थोड़ी वीक है. नाउ मुझे पता चला एक अपनी इंसाइट अपने बारे में कि जी मेरी रिसर्च साइड वीक है, मुझे और रिसर्च करनी चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन उस साइड पे भी करनी चाहिए, टाइम लगाना चाहिए. ऐसा क्यों ना करूं कि मैं कोई फलाने इंस्टीट्यूट में या फॉर दैट मैटर मेरी यूनिवर्सिटी में इवनिंग प्रोग्राम में एक रिसर्च के ऊपर एक क्रैश कोर्स हो रहा है तो मैं वो अटेंड कर लेता हूँ, या रिसर्च राइटिंग के ऊपर कोई वर्कशॉप या सेमिनार हो रहा है मैं वो अटेंड कर लेता हूँ. सो मुझे डेवलपमेंट के लिए पर्सनल इंसाइट भी मिल गई कि जी मेरी ये साइड वीक है, मुझे इसे इम्प्रूव करना है. अगले साल की परफॉर्मेंस में
ये नहीं आना चाहिए कि जी मेरी ये साइड वीक रह गई है, बाकी तो बहुत अच्छी मेरी फीडबैक आई लेकिन ये इसको भी ठीक करना है मैंने. Administrative actions are more fair and appropriate. Performance management system provides valid information and about performance that can be used for administrative actions such as merit increases, promotions, transfers as well as terminations. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होता है, पता चलता है हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बेसिस पे उसे रिवॉर्ड देना है, उसके प्रमोट करना है नहीं करना, या उसको वार्निंग देनी है, कंपनी से निकाल देना है, भाई तुमने पहले भी वार्न किया था, तुम नहीं परफॉर्म अपना कर रहे, तुम्हारी परफॉर्मेंस नेगेटिव में जा रही है, तो द कंपनी थैंक्स यू वेरी मच एंड आस्क्स यू टू प्लीज लीव द कंपनी. In general, a performance management system helps ensure that rewards are distributed on fair and credible basis. But there's another aspect to it, and that is that the system is fair and appropriate. Agar performance management system is in place, then what happens? मेरी performance इस साल अच्छी थी, मुझे feedback भी दी गई और मुझे कहा गया अपनी रिसर्च इम्प्रूव कर लें, और एक और मेरे साथ एम्प्लॉय है, अब उसकी परफॉर्मेंस, उसको भी फीडबैक दी गई, अब उसकी मुझे पता है कि मैंने उससे ज़्यादा मेहनत की है और वो उसमें ये फ्लॉज हैं, तो अगर उसको यूनिवर्सिटी प्रमोट कर देती है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट कर देती है, तो आई विल आस्क द यूनिवर्सिटी, what's wrong with me? Why have you not promoted me to associate professor? Why not? We have the same credibility. I mean, even his credibility or his performance is less than what I have. So, when the performance management system is in place, things become more fair and appropriate. University will not promote him whose performance is less. University will prefer, or university will only reward those people whose performance is good, who the performance management system suggests that they should be promoted or given extra bonuses. In turn, such decision based on sound performance management system leads to improved interpersonal relationship and enhanced superior सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट ट्रस्ट. आपके सुपीरियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं. क्या होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से जब आप एक दूसरे से फीडबैक ले रहे हैं, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, तो आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी एनहांस होते हैं, बढ़ते हैं. मैंने अभी हम उस एक एग्जांपल को हम बार बार फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि बात की कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारी रिसर्च साइड की थोड़ी उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. उसने साथ मुझे कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, या तुम ये कोर्स अटेंड कर लो, या फलाने फैकल्टी मेंबर के पास चले जाओ. तो आई विल बी वेरी डिलाइटेड, आई विल बी हैप्पी कि द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट. मेरा उससे रिलेशनशिप और अच्छा होगा. Organizational goals are made clear. The goals of unit and organization are made clear, and the employee understands that the link between what she does and the organization's success. This is the contribution to the communication of what the unit and organization are all about, and how organization goals cascade down to the unit and in the individual employee. First point में क्या कहते हैं कि जी the goal of the unit and organization are made clear. How? एम्प्लॉय को पता है कंपनी का क्या गोल है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में शुरू में ही क्लियर कर दिया गया जी इस साल के ये गोल हैं, ये एम्प्लॉय के गोल हैं, कंपनी के गोल हैं, और ऐसे ये दोनों गोल्स आपस में अलाइंड हैं, और एम्प्लॉय ने इन चीज़ों को अचीव करना है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिकेशन ऑफ what the unit and organization are all about, and how organization goal cascade down to the unit and individual employee. कंपनी का गोल है. अब हमने दो बातें इसमें हैं. पहली बात हमने की जी कंपनी का गोल है, वो क्लियरली डिफाइंड है कि जी कंपनी ने इस साल ऐसे परफॉर्म करना है, ये कंपनी का गोल है, ये एम्प्लॉय का गोल है. अब आपस में दोनों का रिलेशनशिप भी डिफाइंड है, और
कंपनी का गोल कैसे ट्रांसलेट होता है यूनिट लेवल तक, कि जो अलाइनमेंट कैसे होती है, ये भी इट इज़ थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा तो हो सकता है कंपनी का गोल कुछ और, एम्प्लॉय का गोल कुछ और, अलाइनमेंट नहीं होगी दोनों। एम्प्लॉय बिकम्स मोर कॉम्पिटेंट। An obvious contribution is that employee performance is improved. In addition, there is a solid foundation for helping employees become more successful by establishing developmental plans. एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एक तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से इंक्रीज होती है, दूसरी चीज़ उसकी डेवलपमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंस इंक्रीज होती है। वाई? थ्रू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को गोल दे देते हैं, इस साल के ये गोल है, आपने ये काम करने हैं। इस तरह से कंपनी विल ट्राई टू ग्रूम यू, आपके लिए, और कंपनी एक प्लान बना देती है कि इस साल में इन चीज़ों पे कंपनी आपको ट्रेनिंग भी कराएगी, इस पे हेल्प करेगी, कोचिंग भी करेगी। सो एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि मैंने इस साल ये चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्रूव करनी है, और इम्प्रूव करने के लिए ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, और उस तरह से वो उनको ऑलरेडी उसने इन चीज़ों को अचीव करना होता है, तो उसकी कॉम्पिटेंस अपनी भी इंक्रीज होती है, सेल्फ डेवलपमेंट भी होती है। There is a better protection from lawsuits. Data collection through performance management system can help document compliance with regulation. For example, equal treatment of all employees regardless of sex or ethnic background. Better protection from lawsuits. Lawsuits का मतलब है, हमने शुरू में एक एग्जाम्पल लिटिगेशन वाली डिस्कस की थी, कि अगर अब कंपनी के पास डेटा है सारा, कंपनी के पास कौन सा डाटा है, फीडबैक डाटा, अप्रेजल्स का डाटा है, उनकी बेसिस पे कंपनी ने क्या करना है, रिवॉर्ड सिस्टम है कि एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपने देखना है कि जी सारे मेल्स को ही तो नहीं, मेल्स को दे दिया है और बोनस, या फीमेल्स को दे दिया बोनस, छुट्टियां कितनी किसको दे सकते हैं, कितनी किसको मिल सकती हैं, फिर एथनिक बैकग्राउंड क्या, एशियन है या यूरोपियन है, उनको आपस में ये जो है, सो दैट पीपल फील कंफर्टेबल, people do not have grudges, resentment to the organization, and they do not go to the court of law. Supervisors' view of performance are communicated more clearly. Performance management system allows managers to communicate to their subordinates their judgment regarding their performance. I am a faculty member. I have 2 teaching assistants and 3 of the research assistants, and another 2 of the lecturers. अब वो जूनियर लेक्चरर्स जो हैं और बाकी के जो स्टाफ है जो मेरे अंडर है, मैंने उनकी हर सेमेस्टर के बाद एक परफॉर्मेंस उनका अप्रेजल करना है। उनको मैंने क्लियरली बताना है कि जी आपने इस सेमेस्टर में ये परफॉर्मेंस थी, और उनको कन्वे भी करना है, और उनको मैंने बताना है कि जी ये चीज़ें आपने नहीं की, आप इतने दिन टाइम पे आए, इतने दिन टाइम पे नहीं है, मैंने आपको ये टास्क दिया था, आपने टाइम पे किया नहीं किया। और मेरी ये जॉब है कि मैंने उनका ख्याल भी रखना है और उनको कम्युनिकेट भी करना है कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, कहाँ आप ठीक जा रहे हैं। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट कि उनको मैं प्रॉपर फीडबैक दूँ, उन्हें बताऊँ कि व्हाट दे आर डूइंग, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। Organization change is facilitated. Performance management system can be useful tool to drive organizational change. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने चेंज लानी है, उसकी स्ट्रैटेजी में, लॉन्ग टर्म गोल में, शॉर्ट टर्म गोल में, तो चेंज लाने के लिए अगर इफ़ आई हैव अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस, तो मेरे लिए आसानी से मैं लॉन्ग टर्म गोल या कंपनी का गोल चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो कैस्केड डाउन होके एम्प्लॉयज़ के गोल्स भी चेंज हो जाएंगे नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। फॉर एग्जाम्पल, assume an organization decides to change its culture to give top priority to product quality to produce quality in consumer service. Once this new organization direction is established, performance management is used to align the organizational culture with the goals and objective of the organization to make possible changes. एक दफ़ा कंपनी के गोल्स मैंने डिफाइन कर दिए कि जी मैंने
टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट, टॉप प्रायोरिटी पे मेरा क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी और कंज्यूमर सर्विस, दो चीज़ें, और मैंने प्रोड्यूस करनी है टॉप क्वालिटी और कंज्यूमर सर्विस भी देनी है। तो मैं ये सबको पता चल जाएगा नीचे लेवल तक कि जी जो हमारे प्रोडक्शन वाले उनको भी पता होगा कि जी ये आपने प्रोड्यूस करना है और इसकी टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस देनी है, सर्विस डिपार्टमेंट को पता होगा कि जी ये देना है, सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कंपनी की पॉलिसी है कि सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए। Motivation, commitment and intentions to stay in the organization are enhanced. If I'll be happy with the company, I'll stay in the company. If I'll be happy with my head of department, with my cluster head, with the university, I'll stay with the university. मेरी कमिटमेंट भी होगी, मैं काम भी करूँगा और मेरी इंटेंशन भी होगी कि मैं रहूँगा। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे प्रॉपर फीडबैक नहीं देता, मुझे कोचिंग नहीं करता, या क्लस्टर हेड फॉर दैट मैटर, तो I'll seek other opportunities कि मुझे as soon as कहीं और जॉब मिल जाए, I'll switch. Now we have come to the end of this session. Now let's see what we have learned in this session. We talked about the course objectives, key learning outcomes, then we discussed, I announced the contents and the course structure. Then we went through understanding what is performance management, case study of Sally, and then what is performance management system. हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफरेंशिएट किया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम देखा कि सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड देन वी डिस्कस्ड अनदर टू मैरिल लिंच की एक, हमने सीमेंस की हमने केस स्टडी हमने डिस्कस की, फिर एंड पे हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के, एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाई डू वी डू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. So with this we have come to the end of the session. Thank you very much.